Hello everybody, namaste and welcome to the channel guys, and let's get started with your pick a card reading for this week। तो चलिए देखते हैं ये वीक हम सब लोगों के लिए कौन सी एनर्जीज लेके आ रहा है, क्या कुछ होने की संभावना है। सो वी विल गेट स्टार्टेड विद आवर टू डू लिस्ट। ये चीज हमें यूनिवर्स करने के लिए कह रहा है और हम देखेंगे कि ये कुछ क्या कुछ है। So we don't have the light. Let's wait for the light. In the meantime, let me arrange couple of things. All right. Let me shuffle the cards. No problem. Let's make use of this period. And we have the light. All right. और एक कार्ड नीचे गिर गया है। What does this mean? Learn from experience. Learn from the past. This is something that I think spirit guides want us to pay attention to. We all have to learn from our past. ठीक है? All right. तो यहाँ पे रख देते हैं हम अपने कार्ड्स को and let's see. God's guidance angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all of us for this week. What is that we can know? We thank you so much for the guidance. Thank you. Yes, we have the card. Let's take this one. And let's take this one. You want to know the meanings? चलिए यहाँ पे आप चूज कर सकते हो whatever you feel attracted to. That is your card today, guys. And let's and I will see you in the reading, guys. हेलो पाइल नंबर 1 और आपने चूज किया है ग्राउंड हॉक स्पिरिट और ये बोल रहा है टाइम टू लेट गो. व्हाट इज दैट यू नीड टू लेट गो? देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ये ग्राउंड हॉक स्पिरिट है और यहाँ पे आपने ब्राउन जैस्पर चूज किया है विच इज स्टोन ऑफ ग्राउंडिंग. So time to let go. What is that you need to let go? चलिए ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे क्या let go करने के लिए आपको बोला जा रहा है. This week is about letting go for pile number 1. Let's get more clarity. I saw the Emperor card. Are you being asked to let go timidness and make way for Emperor energy? God's guardians angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for all the pile number 1 for this week. What is that they can know? What is the energy coming their way? Thank you so much. What is the energy coming their way? यहाँ पे hanged man कोई situation से आपको बाहर निकल रहे हैं. You know, it is no more like आप hanged man के position में हैं और आपको बोला जा रहा है आप शायद बैलेंस की तरफ जाओगे. टाइम टू लेट गो. आप किसी चीज को पकड़ के बैठे हो और वहां से आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है. बिकॉज इफ यू मूव फ्रॉम हैंग्ड मैन पोजिशन, 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बैलेंस, जेनरॉसिटी इज वेटिंग फॉर यू. सो 6 ऑफ पेंटिकल इज अ कार्ड कि हमने इज अ कार्ड ऑफ रेसिप्रोकेसिटी, राइट? तो ऑल राइट, वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी. We have the Sun card which is reverse and we have the 4 of Sword का card also. यहाँ पे Page of Cup शायद कुछ start करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि see how beautiful, 10 of Sword, Page of Cup. It's time to say yes to the sunshine. It's time to start something. Page of Sword, 10 of Sword is like ending of something. यहाँ पे you are starting something.
है ना? It's time to say no to all these swords and all the tension and all that. This is what you want to do actually, and here your message is let go. What do you need to let go? You need to let go the cycle that you are in right now, because आपके lessons यहाँ के ना ख़त्म हो चुके हैं, and it's time to actually let go. ये जो भी चीज़ है, for different people it's going to be different things, but whatever it is time to let go and start afresh. अगर आप इस तरह की कुछ चीज़ contemplate कर रहे हैं तो you are on the right track. You should actually move, because जब आप अभी आप शायद हैंग्ड मैन के साथ टंगे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, राइट? आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है विद दिस डार्कनेस, एंड योर गाइडेंस इज कि जो भी छोटा सा भी होप दिख रहा है इस पूरे डार्कनेस में, वट एवर लिटिल लाइट यू सी, होल्ड ऑन टू इट एंड मूव टूवर्ड्स दैट, बिकॉज वहां से ही आपकी सन की लाइट आएगी. यू हैव नो आइडिया. ये छोटा सा दीपक आप देख रहे हैं ना, इससे ही आपका सन, you will gradually, this will make way for you to sun to shine on your life. All right. और यहाँ पे आपकी एम्प्रेस की एनर्जी है. यहाँ पे सन शाइन नहीं कर रहा है, माने कि सन उल्टा है, एंड यहाँ पे आप 4 ऑफ सोर्ड के साथ क्या कर रहे हो? चिंतन मनन कर रहे हैं. Give me a second, guys. All right, so let's continue. It took quite a time for the light to come. Usually इतना टाइम नहीं लगता है लाइट को आने में, तुरंत ही आ जाता है. बट मुझे भी ऐसा लग रहा है ना कि you are waiting too long, like you are waiting too long for something to happen. क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी इतनी हाई वाइब्रेशनल एम्प्रेस की एनर्जी है. विद दिस एम्प्रेस एनर्जी सन शुड एब्सोल्युटली शाइन ऑन यू. इट शुड बी शाइनिंग ऑन यू. आपकी ये एम्प्रेस वाली एनर्जी है, सन को शाइन करना ही चाहिए, बिकॉज दीज टू आर हाई वाइब्रेशनल कार्ड, मेजर आर्काना के कार्ड है. लेकिन आपका अपना एनर्जी क्या है? 4 ऑफ सोर्ड के साथ वेट करके पास्ट में देख रहे हो. इट्स मोर लाइक you are waiting for something to happen. You are waiting for something to become fair. And why am I telling this? क्योंकि यहाँ पे आप हैंग्ड मैन का कार्ड आया था और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था. 6 ऑफ पेंटिकल इज द कार्ड ऑफ व्हाट? जेनरॉसिटी. यानी कि कोई चीज आप यूनिवर्स में डाल रहे हैं, कोई यू आर पुटिंग द एनर्जी इनटू द यूनिवर्स, यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट एंड यू आर वेटिंग. डू यू डिजर्व इट विद दिस एम्प्रेस एनर्जी? एब्सोल्युटली 1000% सन शुड बी शाइनिंग ऑन यू, बट फॉर सम रीजन सन इज नॉट शाइनिंग. मे बी आपके आसपास के लोग हैं जो कि एनर्जी को बांध के रखे हुए हैं. यू आर नॉट बीइंग गिवन जेनरसली. आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में है, आप यू आर वेरी गिविंग. एम्प्रेस एनर्जी एक मदर की एनर्जी होती है जो कि अपने बच्चे को बहुत ही नर्चर करती है. शी इज मदर्स एनर्जी इज नर्चरिंग एंड गिविंग एंड व्हाट नॉट. बट आप स्टिल सनशाइन नहीं कर रहा, यानी कि कोई रेसिप्रोक मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ये वर्ड, यानी कि ये रेसिप्रोकेशन नहीं है यहाँ पे. आप जहां पे भी हैं आप वेट कर रहे हैं, बट हाउ लॉन्ग विल यू वेट? दैट इज द क्वेश्चन. देयरफॉर लेट टाइम टू लेट गो है. एक नई चीज स्टार्ट करने का समय आया है. मुझे लग रहा है कि आपको सन कार्ड रिवर्स के साथ क्लैरिटी भी नहीं है. मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी चीज को अपने सर पे भारी भरकम चीज को टांगे हुए हो और वो टेंशन क्रिएट कर रहा है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा भी है, राइट? तो ये सब चीजें देख रहे हैं हम देखते हैं कि ये सन की एनर्जी को उल्टा किस चीज ने किया हुआ है, राइट? आई हैव दिस कार्ड, आई विल चेक विद दिस कार्ड. ग्राउंडेड होने की जरूरत है. Maybe you're very giving, but with giving, why are you not receiving? Can we please have a clarifier for the sun in reverse? My goodness, this card really wanted to come out. स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स में है. There is some story to this card, but I don't remember the story. मुझे लग रहा है कि because I don't remember the story of this card, of this strength, you don't know your strength,
You know what? You can tame anything. You don't know your power. You don't know your strength. मुझे ऐसा लग रहा है. You're very powerful to take on any challenges, but you don't know your strength. Alright, तो इस तरह की आपकी कुछ एनर्जी है गाइज इस हफ्ते की. लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है. अब क्या लेट गो करना है ये आपको बेटर पता है. फॉर लॉट ऑफ यू इट कुड बी द एनवायरमेंट दैट यू नीड टू लेट गो. यू हैव टू लेट गो द डाउट दैट यू हैव ऑन योर स्ट्रेंथ टू मेक इट. देखो यहाँ पे देखो सन जो है ना इसने अपने सर पे रखा हुआ है. राइट, it's like you feel that you cannot, this cannot happen, but you have the strength. If you find the strength you can make it happen. Because sun is like the most happiest card of the deck, unbelievably sunny and shiny and happy tappy. You can create this. ये strength है आप में, but you are doubting your strength, and that is why this sun is upside down. एंड यहाँ पे आप सोच में चिंतन में पड़े हो क्या करना चाहिए. एनीवेज लेट्स सी गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल द पाइल नंबर 1. क्या जानना जरूरी है आपको? सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल. Being over-controlling can sabotage a relationship. To more effectively achieve your goals, back off, regroup, and give the situation some breathing room. Some of us are being surrender the idea that you can change somebody, fix somebody. राइट, देखो ये दोनों कार्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं. सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल. आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है आप उसको ठीक कर सकते हैं, बट एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन हीलिंग. राइट, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे कोशिश कर रहे हो, हैंग ऑन किए हुए हो आप इतना ज़्यादा कि वो आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं. और किसी भी चीज़ को, कोई भी सिचुएशन को जब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो तो डेफिनेटली वो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू समबडी, दे विल नॉट लिसन. चिंता की बात नहीं है. देखिए ये दिस कार्ड हैज शोन अप फॉर यू फ्रॉम नोवेयर. आई थिंक यू आर गेटिंग सम गुड लक दिस वीक. All right, this is super interesting guys. Let me tell you. देखो कोई एक सिचुएशन में ना आप बहुत अच्छे हो विद दिस एम्प्रेस एनर्जी. यू आर वेरी नर्चरिंग, यू आर वेरी गिविंग, बट हो सकता है कि किसी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा दी है पर आपको उसमें फेयर डील नहीं मिल रहा है. एंड कोई आपको परेशान कर रहा है और शायद आप उसको ठीक करना चाह रहे हो. आप बहुत ज़्यादा 4 ऑफ सोर्ड के साथ चिंतित भी हो, हर्ट भी हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं. और आपको लगता है कि आई कैन नॉट डील विद दिस सिचुएशन. आप में स्ट्रेंथ नहीं है, आप अपना स्ट्रेंथ भूल रहे हो और आप बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए. तो आपको बोला जा रहा है ना कि आप लेट गो करो सिचुएशन को. देखो यू डोंट, फॉर सम ऑफ यू यू हैव टू प्रोबेबली लेट गो समथिंग विच यू नो. आपको पता है कि आपको क्या लेट गो करना है, बट फॉर लॉट ऑफ यू इट इज लेटिंग गो द डिजायर टू कंट्रोल द सिचुएशन और एनीबडी. आप जो भी इंसान आपको परेशान कर रहा है या जो भी कर रहा है ना, आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हो. आपको लग रहा है आप में स्ट्रेंथ नहीं है उसको कंट्रोल करने का. आप ना अपनी डिजायर टू कंट्रोल द सिचुएशन उसको लेट गो करिए. एंड यू विल सी कि व्हेन यू लेट गो एंड व्हेन यू सरेंडर, luck will shine on you. And how beautiful that message is, guys. Because this card came from nowhere. It has made an appearance for you. I was to pull this card. Wow, I think some unexpected luck is coming for you guys. What a beautiful reading. Very nice. Good fortune is about to smile on you, so get your cosmic camera ready and prepare to capture the moment. This luck might come in the form of something small,
like a miraculous parking space or permission to choose the lunch order. Or it might rain down on something more significant like a new position in your dream career with double the salary and triple the benefits, or a new co-worker that ends up being your BFF, or trust or true love. At the very least, maybe you will come across a candy dish with something good in the. Wow, some unexpected luck is showing up for you. Wow. Jaldi, 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 come on. Pile number 1. You are being helped. Yes, that is why the luck is coming your way. Heaven is working behind the scenes. इसीलिए आपको इतना ज़्यादा प्रेशर डाल के किसी को भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी सिचुएशन को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है. यूनिवर्स विल मेक इट वर्क through a dash of luck sent your way, guys. So even if you don't see the results, Krishna is helping you. What a guidance. I wish all the best to you. May Krishna bless you, and I will see you in the next reading, guys. Stay grounded. Scattered energy mat kariye apni. Krishna is blessing you and helping you with this dash of luck coming your way. That was the guidance, and if you like the guidance, please like, share and subscribe for more videos, and I will see you in the next reading next Monday. Bye for now. Hello pile number 2 and welcome to your weekly guidance. तो चलिए देखते हैं ये वीक यूनिवर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कौन सा मैसेज आ रहा है आपके लिए. आपने चूज किया है क्लियर कॉल्स, यानी कि किसी तरह की क्लैरिटी की आपको जरूरत डेफिनेटली है, और आपने चूज किया है पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट इन द प्रोटेक्टेड मोड. अब हम देखेंगे टाइम फॉर द बिगनर्स माइंडसेट का उल्टा क्या हो रहा है, आपके लिए कौन सा गाइडेंस आ रहा है, और इसको हम पढ़ेंगे गाइड बुक से. तो हम आपके प्रोटेक्शन मैसेज पे चलते हैं. आर यू फीलिंग prickly and defensive lately and assuming you will be hurt before you have seen any sign that such a reaction is called. You will be hurt and before you have seen any sign that such a reaction is called for. Perhaps an old sense of guilt and shame is causing you to be cynical and wary when you are meant to be open and curious. Self-protection is a good sign, but you may be protecting yourself from something that will not actually harm you, but instead will bring you abundance, happiness, and love. Remember your innocence and you will see what you have been overlooking. Porcupine quills are filled with air, allowing a porcupine to float in water. Now is a time to let your innocent nature keep you buoyant. Whoa, what a message. Time for a beginner's mindset. ये प्रोटेक्शन मैसेज में देखिए आपको आके ये बोल रहा है ना कि आप किसी चीज से जरूरत से ज्यादा डर रहे हैं और आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ये पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट जो होता है ना, ये अपने आप को, इसके जो स्पाइक्स हैं, जैसा कि हमने बुक में भी पढ़ा, इसके जो स्पाइक्स है ना, ये किसी चीज से डर रहा है. और ये पॉर्क्यूपाइन अपने, इसके जो स्पाइक्स होते हैं, इज टू प्रोटेक्ट द पॉक्यूपाइन, ताकि कोई एक प्रेडेटर उसको हार्म ना करे, खा ना ले, या जो भी है. तो ये प्रोटेक्शन मैसेज है कि देखो, अगर कोई आपको हार्म कर रहा है तब तो आप अपने पॉक्यूपाइंस पे अपने जो आपके यू नो व्हाट एवर दीज थिंग्स आर कॉल्ड, आप उससे प्रोटेक्ट करिए. लेकिन अभी जो भी सिचुएशन में है ना, आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू हैव ऑल इट टेक्स टू मूव फॉरवर्ड. क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड जाते हैं बिना डरे हुए कि अरे मैं जाऊंगा तो उसमें क्या होगा, मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि पॉक्यूपाइन अपने आप को डाउट कर रहा है. एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू जस्ट हैव ऑल द टैलेंट यू नीड टू मेक इट हैपन. तो बिल्कुल भी डरिए मत.
आप जिस चीज से भी डर रहे हैं उससे आपको डरने की जरूरत ही नहीं है इस वीक। समझ में आया ना? एंड व्हाट अ मैसेज, वाओ, गिव मी अ थम्स अप इफ यू रियली नीडेड टू हियर दिस गाइस। यू हैव इट ऑल इट टेक्स। तो यही क्लैरिटी आपको चाहिए थी कि आप कोई भी सिचुएशन से, किसी भी इंसान से, कोई भी इंसिडेंट से जरूरत से ज्यादा डर रहे हो। इनफैक्ट आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आपने पहले ही दिमाग में बहुत सारी ओवर थिंकिंग करके रखी है कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं भाई। गो विद अ इनोसेंट माइंड, ओपन स्पिरिट। वाओ, व्हाट अ मैसेज टू गेट। एंड आई एम रियली क्यूरियस कि ये कौन सी एनर्जीज में शो अप होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, सी, जो भी आपको डरा रहा है ना, यू आर मोर पावरफुल, डोंट बी। यही विजडम चाहिए आपको। एज अ हर्मिट यू नीड द विजडम। 5 ऑफ स्वॉर्ड के साथ हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं एंड यू फील दैट यू आर वेरी पावरफुल। वो बहुत बड़े हैं बट यू हैव द स्वॉर्ड। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, यू कैन डू इट। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। दिस इज द विजडम दैट यू नीड। एग्जैक्टली द सेम थिंग। आप किसी को शू कर रहे हो और यहाँ पे वो, सी, दिस इज मैसेज कि यू नो व्हाट, आप जिस चीज़ से डर रहे हैं ना वो बहुत छोटी सी चीज़ है। देखो, आप ये हो, यू आर दिस कैट, एंड ये आप उसको अच्छे से शूशू कर रहे हो, प्यार से आराम से उसको निकाल रहे हो, बट ये बहुत शाना पट्टी दिखा रहा है, ये जो छोटा सा चूहा है। बट दिस चूहा नोज दैट यू आर सो बिग एंड दिस चूहा कैन नॉट हार्म यू। यू अंडरस्टैंड? यस। 7 ऑफ स्वॉर्ड के साथ कुछ यहाँ पे हो सकता है कि कुछ ट्रिकी एनर्जी होगी डेफिनेटली, बट क्या आपको उससे डरने की जरूरत है? यू आर टोटली सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड, यू डोंट हैव टू वरी गाइस। चलिए ठीक है, जल्दी से क्विकली आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं हम। एस ऑफ कप शायद आपके लिए न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है, यू नेवर नो। अबंडेंस बोला गया था इस कार्ड में। थैंक यू टू एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग कमिंग फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट इज दैट दे कैन नो? ये भी उनके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। ऑल राइट, ये वाला कार्ड जो था ना पाइल नंबर 1 में भी शो अप हुआ था। तो इफ यू जस्ट फील यू कैन, यस, सी, दिस डेविल एनर्जी इज ट्राइंग टू प्ले द trick on you. Wow, but this will not succeed because you are getting the star card, right? Wow, this will not succeed. Give me a second. There is a card that has fallen, and what card is this, guys? This is a page of cup ka card. I think there is going to be some surprise क्योंकि I was not supposed to take this card. This is super interesting. You know, this is super interesting coincidence that has been happening so far. I don't know if it will happen in the pile number 3, but pile number 1 में भी अचानक से एक कार्ड ने एंट्री मारी थी, बूम। और आपकी भी रीडिंग में अचानक से एक कार्ड ने एंट्री मारी है, पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप में ये एक सरप्राइज एलिमेंट है, तो आपके लिए भी कुछ सरप्राइज एलिमेंट वेट कर रहा है। वाओ, देयर इज समथिंग इन द एयर दिस वीक गाइस। जो भी चीज आपको परेशान कर रही है ना, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। वो व्हाट अ कार्ड टू गेट। And here is your star. Here is your star. You're holding your star. You're holding your wish fulfillment. जो भी चीज से आप डर रहे हो, you are rising above it. यहाँ पे देखिए डेविल की एनर्जी ये डेफिनेटली है, कोई चीज आप पे पावर लेना चाह रही है। ये क्वाइट लिटरली आपका अपना डर होगा जो आप पे पावर ले रहा है, और ये आसपास के लोगों से, सिचुएशन से भी रिलेटेड हो सकता है कि कोई आपको जबरदस्ती का डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन वो बहुत छोटे लोग हैं, ठीक है? आपको उनसे डरने की बिल्कुल जरूरत है। यू आर द बिग कैट। वैसे भी कैट और माउस की लड़ाई में आपको पता ही है कि माउस का क्या हाल होता है, बट एनीवेज वो कैट बड़ी ही नहीं है, वो लंबी भी है उसमें। तो दिस इज व्हाट इट इज। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मूव फॉरवर्ड, कोई भी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये जो डेविल है आपका फियर ज्यादा है। एंड 3 ऑफ wands के साथ आप जो भी चीज का वेट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट इट विद द स्टार कार्ड। वो राइट, यू आर वेटिंग ऑन, एक्सक्यूज मी, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आपको लग रहा है कि कोई आपको इशारों पे नचा रहा है, बट 3 ऑफ wands, योर शिप्स आर कमिंग, एंड स्टार के साथ आप उसको शिप में बैठ के निकल जाओगे। And wow, this is going to be a divine intervention, something happening in there.
ओ माई गॉड, डिड आई टेल यू कि ये वाला कार्ड शफल करते वक्त अभी आपको बोला ना कि आपको पाइल नंबर 1 देख लेना, एंड आई जस्ट टोल्ड यू ऑल्सो कि किस तरह की सिंक्रोनिसिटी पाइल नंबर 1 में भी हुई है और यहाँ पे भी हुई है, डिवाइन इंटरवेंशन। तो आप जरूर पाइल नंबर 1 देखिए, आपको मिलने वाला है बैलेंस। वाओ, ऑसम। चलिए अब क्विकली हम आपका सरेंडर कार्ड निकाल लेते हैं, देख लेते हैं आपको किस चीज़ से सावधानी रखनी चाहिए, एंड वी विल मूव अहेड विद दैट थिंग। नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल निकाल दीजिए, देखिए नेगेटिव थिंकिंग है आपके लिए, एंड लेट्स सी। थैंक यू डियर एंजल्स फॉर गाइडेंस कमिंग फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट, डेविल से मत डरो, आप अपने डर से भी मत डरो। Take control of your thing. Boom! Do you see this miracle? And what did I tell you? That there is a divine intervention in your situation, and I think there is something in the air also. तो जो चीज़ आपको लग रहा है कि नहीं होने वाली है, वही सरप्राइज होने वाला है। स्टार कार्ड, मिराकल, व्हाट यू वांट इज कमिंग गाइस। बैलेंस इज बीइंग रिस्टोर्ड। साइलेंस रहिए, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। पाइल नंबर 1 देख लीजिएगा अगर आपको और भी विस्तार पूर्वक गाइडेंस चाहिएगा, शायद इसी सिचुएशन में आपको और भी गाइडेंस मिलेगा, है ना। तो बस अब हम यहाँ पे एक और कार्ड लेके इसका समापन करने वाले हैं। थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग कमिंग फॉर ऑल द पाइल नंबर 2। उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों डर रहे हो आप लोग? चलो यही ले लेते हैं। बूम बूम बूम। टू मैनिफेस्ट वॉट यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, और यहाँ पे आपको मिल भी गया है स्टार कार्ड के साथ। टू मैनिफेस्ट समथिंग रैपिडली, थिंक ऑफ योर डिजायर नॉट वॉट यू फियर। डेविल के बारे में मत सोचो, कृष्णा के बारे में सोचो। चैंट, हम, सिंग एंड प्ले म्यूजिक। चैंटिंग होती ही है हरे नाम कीर्तन, हरे नाम के श्लोक का, राइट। तो चैंट करिए, हरे कृष्णा का चैंटिंग करिए। चैंटिंग करने से हम शुद्ध होते हैं, कृष्णा की कृपा मिलती है, भक्ति मिलती है हमको। सो दिस वाज द गाइडेंस। आई होप दैट्स दिस यू रियली लाइक दिस गाइडेंस गाइस, एंड इफ यू लाइक द गाइडेंस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और कृष्णा आपके लिए यही क्लैरिटी लाना चाहते थे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर गाइडेंस, वेलकम टू योर वीकली प्रेडिक्शंस। तो चलिए देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या कुछ लेके आने वाला है। आपने चूज किया है एमेथिस्ट स्टोन, एंड आपने चूज किया है द कार्ड विच इज टैग स्पिरिट के साथ टेक अ लीप और टेक अ लीड, बट ये आपका प्रोटेक्शन में है। तो चलिए देखते हैं, गाइड बुक से पढ़ते हैं आपके लिए कि आपको क्या करना जरूरी रहेगा इस वीक। Others may not be as far along as you are on your journey. When Stag Spirit appears in the protection position, you are called to be compassionate and patient as you find yourself leading the way. When others struggle to follow you, they may be unsure that you can be trusted. When others struggle to follow you, they may be unsure दैट यू कैन बी ट्रस्टेड। देखिए आपको बोला जा रहा है ना, जैसे कि ये है टेक अ लीड, बट ये प्रोटेक्शन मैसेज है डोंट टेक अ लीड, यानी कि टेक इट ईजी, बी पेशेंट, वॉक स्लो, डोंट कम आउट, डोंट पुश टू हार्ड, डोंट बी टू मच इन दिस मस्कुलाइन एनर्जी। उसको थोड़ा मेलो डाउन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में फील हो रही है, मार्स एनर्जी फील हो रही है ना, तो थोड़ा सा मेलो डाउन करिए, थोड़ा सा उसको डायल इन करिए, क्योंकि आपको आसपास के लोग, अगर आपको लगेगा आप भागते जा रहे हो ना, तो पीपल विल नॉट बी एबल टू फॉलो यू एंड दे विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट यू, कनेक्ट विथ यू, दैट काइंड ऑफ अ थिंग that may be unsure and you can be trusted. Challenging you to be kind and strong, challenging your values and questioning your worth. Know that spirit has put you in this place at this time for a purpose and will not abandon you when you need help with your new responsibilities. यानी कि आपको ना इतना ज़्यादा कुछ, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, या फिर वी नो दिस व्हाट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑन समथिंग, तब हम ज़्यादा फोर्स करते हैं। दीज आर ऑल नॉट कमिंग फ्रॉम प्लेस ऑफ लव, बोलिए हाई वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है। आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो वॉट, कृष्णा इज सीइंग यू,
watching you. You don't have to fear anything. तो ऐसा नहीं है कि you are missing out on anything, or perhaps you are actually uncomfortable leading. Maybe temporarily trapped by your small self and are therefore promoting yourself too strongly. Afraid that others might see weakness or imperfection in you. Let go of your fears and let Stag Spirit remind you that you have what it takes to lead wisely and ethically if you practice self-honesty and listen to others who wish to support you. तो एक तरह का तो मैसेज ये है कि बेसिकली यू डोंट हैव टू पुश टू हार्ड anything. You don't have to push yourself too hard. You don't have to push too much that you are doing. The second thing is कि कहीं ना कहीं हम ज़्यादा push तब कर देते हैं. It's more like you don't oversell yourself. Don't push too hard. Even if it is, selling yourself, don't do that too much. Because know that you are brilliant, you are talented, you deserve whatever you deserve. और उसके लिए आपको कोई भी ओवर नहीं करने की ज़रूरत है. तो इस तरह की कुछ एनर्जी आपकी आ रही है. बोलते हैं ना कि जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड द अदर्स विल कम टू यू, फीलिंग योर पावर. वही वाली बात है आपकी. लेट्स सी इफ इन सरेंडर कार्ड आपको वो कार्ड आता है कि नहीं, बिकॉज द मैसेज इज वेरी सिमिलर. एंड लेट्स क्विकली सी आपके इस वीक की एनर्जी कैसी आने वाली है. Thank you, dear angels, for the guidance and blessing coming for all the pile number 3. What is that they can know? What is that they can know? What is coming their way this week? All right. ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ लॉट ऑफ एनर्जी, enthusiasm, action, want to move forward. 10 of sword. All right. Balance. ये रस्साकशी जो चल रही है इसको ही हमें ख़त्म करना है, राइट? देखो यहाँ से तो आप अपनी वीक की शुरुआत ना काफ़ी इंथुजियाज़म के साथ कर रहे हैं, लाइक या लॉट ऑफ एनर्जी एंड ऑल दैट. यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ गई है और यहाँ पे पर फिर से 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है जो कि बता रहा है कि What starts well ends well. यहाँ पे बीच में थोड़ी चैलेंज ज़रूर है जिसको हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. बट यस, आप किसी चीज़ पे बहुत ही जोश से, खरोश से बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं. पेज ऑफ वॉन्ड्स है, लॉट ऑफ एनर्जी, इंथुजियाज्म है. बट एक ही वार्निंग है जो कि ये वाले कार्ड में भी आया है ना, कि अपनी एनर्जी को स्कैटर मत होने दीजिए. बस बहुत ज़्यादा करने की किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है. पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यस, डू इट एज अ पेज ऑफ वॉन्ड विल डू. यहाँ पे डेफिनेटली हमने जैसा बोला कि किसी चीज़ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स में कुछ रस्साकशी चल रही है. बट मुझे ये लग रहा है कि किसी चीज़ से जो किसी चीज़ के कारण आपके अपने मन मस्तिष्क में जो कुछ एक टग ऑफ वॉर चल रहा हो या आसपास के लोगों के साथ एक टग ऑफ वॉर चल रहा हो, वो जो काइंड ऑफ मे बी इट वॉज रियली हर्टिंग यू, trying you, testing you, disappointing you, making you lose hope, that is turning better. That situation is turning better, guys. 10 of swords से ये जो रस्साकशी से ना आप बाहर आ रहे हो, ये रस्साकशी ने जो आपको टेंशन दिया है ना, उससे आप बाहर आ रहे हैं और एक बैलेंस आपके भी लाइफ में ये वीक लेके आ रहा है. एंड इंटरेस्टिंग इनफ ये पूरे वीक में ये पूरे जो तीनों पाइल्स हैं जिसमें एक कार्ड कॉन्स्टेंटली रिपीट हुआ है एंड वाज अ टोटल शो स्टॉपर इज दिस कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स. 6 ऑफ पेंटिकल इज अ कार्ड ऑफ जेनरॉसिटी. इट इज अ कार्ड जहां पे आपने किसी को कुछ दिया है ना तो आपको भी कुछ मिल रहा है, या फिर यूनिवर्स इज जस्ट बीइंग जेनरस टू यू एंड यू आर रिसीविंग द फ्रूट्स ऑफ योर गुड कर्मा. ठीक है. And as I told you, this card was a total showstopper in this week's pick a card reading. ये वाला कार्ड बाकी के 2 piles में भी show up हुआ है. Therefore, I feel drawn to, as a matter of fact, बाकी दोनों piles में ना ये कार्ड show up हुए हैं while shuffling and all that. But आपके
रीडिंग में दिस हैज पर्टिकुलरली मेड एन एंट्री, देयरफॉर आई फील ड्रॉन टू टेल यू दैट आप अगर इफ यू फील ड्रॉन यू कैन वॉच द लास्ट 2 रीडिंग्स ऑल्सो, पाइल 1 and 2. हाउएवर यहाँ पे ये वाला वीक आपके लिए डेफिनेटली एक बैलेंस लेके आ रहा है, जेनरॉसिटी लेके आ रहा है आपके लिए, ठीक है ना. ऑल राइट, सो लेट्स सी किस चीज से आप कवर ये हो सकते हो, एक किस चीज का आपको सावधान रखना चाहिए. Pile number 3, what is that you need to know? स्ट्रेस छोड़ दीजिए, स्ट्रेस नहीं है क्योंकि बैलेंस आ रही है आपके लाइफ में. डिवाइन टाइमिंग इज अराउंड द कॉर्नर. ओके, सो बैलेंस आ रहा है, स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं है. लेट्स सी व्हाट यू गेट हियर. कंसल्ट एन एक्सपर्ट आ रहा है आपको, तो वो चीज है, ठीक है. ब्लेस्ड चेंज, लेट मी टेक दिस फॉर यू गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ना ब्लेस्ड चेंज हो रहा है. जहाँ पे आप ये 10 ऑफ सोर्ड के साथ काफी स्ट्रेसफुल हैं, ब्लेस्ड चेंज यहाँ पे, और 10 ऑफ सोर्ड से टोटल बैलेंस आ गया आपके सिचुएशन में. सो ये है आपका ब्लेस्ड चेंज, राइट. सो डोंट वरी, एक्सपर्ट का हेल्प आप जरूर ले सकते हैं. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, कॉन्टैक्ट समवन विद एक्सपर्टाइज इन दैट एरिया. It will be absolutely perfect for you to do that. And trust yourself, you have some talent. And yeah, that is the guidance. You know what, I just feel drawn to take one card for you guys, which I have not taken out for other piles, but I just feel drawn to do that. So this is a special card for pile number 3, क्योंकि आपका कंसल्ट एन एक्सपर्ट भी है ना. तो चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आ रही है फॉर पाइल नंबर 3. लेट्स सी. The reason you are getting this extra card is because all the other 2 piles have also got, you know, this extra card somehow making an entry. So why not in yours? Let's see. Welcome abundance in your life. Oh my goodness, do you see this? Prosperity is on its way to you. Have faith that sources will heal your financial challenges. यहाँ पे आपको जो स्ट्रेस है, कलर स्कीम देखिए ये तीनों कार्ड्स का बिल्कुल सेम है. सी हर येलो बॉडी, यहाँ पे ये, डू यू सी दिस? आपको फाइनेंस से लेके, मनी से लेके, प्रॉपर्टी से लेके कोई प्रॉब्लम्स हो रही होगी, लेकिन ये यहाँ पे देखिए ब्लेस्ड चेंज आ रहा है. एंड दिस वाज द ब्लेस्ड चेंज. यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे टोटल बैलेंस 6 ऑफ पेंटिकल्स. मनी प्रॉपर्टी को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं. ब्लेस्ड चेंज इज कमिंग. दीज 2 color scheme, these 3 color scheme. Prosperity is on its way. Have faith. Source will heal your financial challenges, or finance or money से related कोई भी situations है. So this is what the guidance is. You know, this week looks miraculous. जो भी, I mean, if you are expecting something, I think universe is definitely helping us, guys. So that was the guidance for all of us for this week. I hope that you like the guidance, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you next Monday with another weekly guidance. Till then, take care of yourself and bye for now.